the way from have Shri Vasantji Rathi, who's joined us. May I have a round of applause for him from all of you? So, without taking any further time, I request the Vice President and MIC's pillar, Shri Balkisanji, to please welcome the audience. Jai Shri Ram. Today, we gather in this Vasant Ritu to celebrate the remarkable journey of Vasantji Rathi, who I understand is coming from USA via Ayodhya, the birthplace of Maryada Purushottam. I am proud to say that Vasantji Rathi's life embodies the essence of Bhagwan Ram, who has local roots to global heights. Not only is he renowned as godfather of enzymes, revolutionizing industries worldwide, but he also epitomizes the spirit of philanthropy. With deep roots of Indian culture and philosophy, Vasantji Rathi has risen to global prominence through his pioneer work of enzymology. Yet, amidst his groundbreaking achievements, he remains firmly grounded in his values and commitment to give back to the society. MVPM is honored that Vasantji Rathi, in his continued dedication to the upliftment of the underprivileged, has generously contributed to the cause of laptop distribution for MVPMs. His act of philanthropy serves as a beacon of hope and empowerment, inspiring us all to make a difference in the lives of others. And that's exactly MVPM's commitment to nurturing minds through education is reflected in our International Connect program. We are empowering students pursuing international studies while forming vital help groups for those navigating process to India, for those navigating foreign territories. We are additionally we assist professionals in exploring new opportunities globally while facilitating the return process to India. We are also creating platforms for parents to share experiences and aid in managing various aspects while they are abroad. Our focus extends to uniting Maheshwari businesses keen on international trade through collaborations and strategic meetings with diplomatic entities. Finally, through the networking events like today's and global collaborations, including partnership with Maheshwari organizations worldwide, we aim to expand MVPM's global presence and appoint brand ambassadors in different countries. Hence, MVPM's International Connect program is a holistic initiative for Maheshwaris dedicating to supporting diverse facets of global engagement. Friends, I welcome you all on behalf of MVPM and let us draw inspiration from Vasantji Rathi's journey. Let us embrace from him the power of giving and the potential within each of us to create positive change on both local and global scales. I thank the entire team of MVPM's International Connect and scholarship team for organizing today's program, and our special thanks to Sri Narayanji Chandak for introducing MVPM, the wonderful personality of Vasantji Rathi. Thank you, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद बालकिशन जी। मैं शेखर भाऊ से गुजारिश करता हूं कि एमबीपीएम की ओर से वसंत जी का स्वागत करें। और I also request Sri Narayan ji to join Shekhar ji because Sri Narayan ji is part of MVPM. He is the extended arm of MVPM in USA. Vasant ji sir, please. Vasant ji, request you to please come. Before we move into hearing more from Vasant ji, I would like to inform this entire gathering
And let me tell you, there are a lot of people who have joined online to witness this program live. So, welcome once again to that entire team from across the world as well. Some of them in US who are just waking up to reality today. But we we have Vasanji here who has actually agreed to donate laptops under the laptop distribution scheme of MVPM. And to tell us more about that, I'm inviting the scholarship committee chairman, Shri Dr. Shamji Chandak, to come and tell us more about this initiative and maybe a little bit more about the program. सभी से जय श्री कृष्ण। एमवीपीएम की जितनी कमिटीज़ है और जितने प्रोग्राम्स है, उसमें जो मेन एक्टिविटी चलती है, जो पहले से चलती आ रही है, हॉस्टल और स्कॉलरशिप। तो मैं स्कॉलरशिप का काम देखता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत सारी बातें तो इन्होंने, अश्विन जी ने स्कॉलरशिप के बारे में बता दी है, फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि स्कॉलरशिप ये पहले से चलते आ रही योजना है। इसके अंदर समयानुसार चेंजेस होते गए। जैसे पहले फिजिकल फॉर्म भरे जाता था, अभी जैसे कि ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही है, तो हर साल करीब 750 से 850 एप्लीकेशंस आते हैं, जिसमें हम स्क्रूटनी करते हैं। अलग 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 पॉइंट्स के ऊपर हम स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनाइज करके करीब 450 से 500 या 550 स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट करते हैं, जिनको हर साल 1 से 1.5 करोड़ के बीच में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसमें अब स्क्रूटनी के अंदर हम लोग, वसंत जी आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि जो डोनेशन देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस डोनेशन को हम सही जगह पहुँचाएं। तो उसके लिए हम जो स्क्रूटनी करते हैं, तो हम पर्सनल स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से हम इंटरेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं डाउट अगर आता है, तो उस गांव में रहने वाले हमारे जो परिचित व्यक्ति है, उनसे भी हम वार्तालाप कर लेते हैं, ताकि मन में इच्छा यही रहती है कि चाहे लैपटॉप हो चाहे स्कॉलरशिप हो, डोनर डोनेशन बड़े अ, आशा से देता है, और जब हम उसको सही जगह पहुंचाते हैं, तो वो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज हमारे भी मन में थोड़ी कहीं तो भी कमी रहती है कि हम लोगों ने इसको ठीक से जांचा नहीं, क्योंकि आज लैपटॉप भी करीब 50,000 रुपये का चीज़ बनती है। तो वो एक हम प्रिकॉशन काफ़ी लेते हैं, स्पेशली इसके लिए आपको बताऊंगा। और उसके बाद में हम लोग, मैं बताया कि जैसे समयानुसार चेंजेस किए। अभी स्कॉलरशिप की प्रोसेस जो है, फॉर्म लेने से लेके स्क्रूटनाइज करने से लेके, तो उनके बैंक अकाउंट में, बच्चे के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने तक का सारा ऑनलाइन हमने किया है, ताकि कहीं कुछ ऐसे ये ना रहे से, क्रिस्टल की क्लियर रहे सारी चीज़ें। हम भले ही बच्चों को रिफंड के लिए मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे जब अच्छे करियर में लग जाए, तो उनसे पैसे कुछ वापस आए, उसके लिए भी हमारे प्रयास रहते हैं। तो वो प्रयास कैसे है ना, कि हम बच्चों को रिमाइंडर देते हैं। एक पर्टिकुलर बच्चे को जो साल में स्कॉलरशिप दे दी, तो हम साल गिनते हैं कि भी इतने साल में वो जॉब को लग जाएगा, तो वो हम सेट करके रखते हैं। उस हिसाब से उनको फिर जब बच्चा ये होता है, तो उनको मैसेज जाता है, पत्र जाता है, फ़ोन यहाँ से आते हैं, ताकि वो भी कुछ मोटिवेट होए कि वापस समाज को जो उन्होंने लिया है वो देना बने। तो वो भी एक हमारा रिफंड प्रोसेस भी अच्छी चलती है, और रिफंड आता भी है। यानी कुछ कुछ बच्चे तो 10 रुपए लेते हैं, तो 50 रुपए भी देते हैं। कहने का मतलब ऐसे भी कुछ उदाहरण है यहाँ पे। 2022 में ऐसी ही हमारे अ, भाभी जी और अतुल जी के और शेखर जी हमारे प्रेसिडेंट, इनके सबके मन में विचार आया कि क्यों ना इसको हम लोग और थोड़ा अगला कदम बढ़ाएं। तो लैपटॉप की एक संकल्पना आई है, ताकि हम देखते हैं आज कोई भी फैकल्टी का बच्चा हो, वो लैपटॉप के बिना ऊपर नहीं जा सकता। उसका जो करियर ब्राइट होना है, वो लैपटॉप के बिना असंभव है। और ऐसे देखा गया है कि काफ़ी बच्चों के पास में लैपटॉप नहीं है। ये संकल्पना रखते हुए ये प्रस्ताव पूना के दो डोनर, जो पुरुषोत्तम जी लोहिया है, फिर तापड़िया जी, राजेंद्र जी तापड़िया है, राहुल जी राठी है, इनके तरफ रखा। तो उन्होंने उदार मन से 100 लैपटॉप, किन्हीं 50 लैपटॉप ऐसे डोनेशन भी दिया, और वो कार्य को शुरुआत हुई। तो जब एप्लीकेशन मंगाया, तो पहले ही इसमें 850 एप्लीकेशन आए वसंत जी। और स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा मज़ा हमको उसमें आ रही है अभी, कि बच्चों को कैसा, नीडी बच्चे को कैसा ढूंढे हम लोग। तो
करीब आज तक यानी अभी तक 450 लैपटॉप बच चुके हैं, इंक्लूडिंग हम लोगों ने पिछले 3 महीने पहले नागपुर जाके भी कुछ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए। सारे मिलके 450 के करीब हो गए, 375, और 25 लैपटॉप अभी और इस महीने के एंड में नागपुर जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल 400 लैपटॉप हो जाएंगे। लैपटॉप के बारे में थोड़ी स्क्रूटनी हमें ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि बड़ी चीज़ है, तो वो भी हम लोगों ने काफ़ी प्रिकॉशन लिए, जैसे i3 किसको देना है, i5 किसको देना है। बाद में सही में नीडी बच्चा कौन है। अब लैपटॉप जैसी चीज़ एक आध बार हो सकता है कि बच्चे भी थोड़े यानी लालच में आ जाती है, भाई ले लो, तो वैसा नहीं होने दिया। अब 1-2% वाली बात तो अलग है, 1-2% वैसे हुआ भी होगा, लेकिन जहाँ तक बन सके तो लैपटॉप सही जगह पहुँचे, ही हमारा प्रयास रहा। अभी भी करीब 250-300 बच्चे और वेटिंग लिस्ट में हैं, तो इस तरीके से ये काम चलते जा रहा है। हम लोगों ने पिछले साल जालना में जो ट्रेड फेयर हुई, तो वहाँ का भी चांस लिया, वहाँ जाके भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए मराठवाड़ा। उसके बाद में हम लोगों ने ऐसे अतुल जी का और हमारे शेखर भाव का ये कंसेप्ट रहा कि भाई क्यों नहीं इसको हम लोग इस यानी इस प्रवाह को हम लोग जो विदर्भ माहेश्वरी है, या फिर अखिल भारतीय माहेश्वरी है, या महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा है, इन लोगों को भी उनके साथ में लेना। तो वैसे हम लोगों ने उन लोगों से यानी से कांटेक्ट किया, अच्छा रिस्पांस मिला। विदर्भ से लेट मिला ये बात अलग है थोड़ी, बाकी मराठवाड़ा से और बाकी उर्वरित महाराष्ट्र से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हर जिला अध्यक्ष हमने रिक्वेस्ट किए, उस हिसाब से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। करीब 30-35 लाख रुपए उधर से भी आए, और फिर वो एक प्रोग्राम हमने जाड़ना ट्रेड फेयर में रखा, तो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हुआ। इस तरीके से ये काम बहुत अच्छे तरीके से चलते आ रहा है, और आगे इसको और बढ़ाना है। तो वसंत जी साहब सभी से ये निवेदन है। धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, बहुत सविस्तर बता दिया आपने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मैं सिर्फ उनकी बात को एक ही पंक्ति में बताऊंगा कि जो उन्होंने कहा कि डोनर की जो इच्छा होती है, तो वो किसी कविता में पढ़ा था बचपन में कि पुण्य नहीं मिलता पानी को, प्यास से अधरों को बिन परसे। ये वाली हिसाब है ये। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ में दो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस डोनेशन का लाभ लिया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आके अपना मनोगत अपने सामने रखे, आप सभी के सामने रखे। सबसे पहले माधुरी। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम माधुरी संजय जी मुंदड़ा है। मैं जलगांव से हूँ। मेरी मतलब 12th के बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि मैं आगे पढूँ। सो दैट टाइम आई केम टू नो अबाउट एमबीपीएम स्कॉलरशिप स्कीम, और उनका प्रोसेस बहुत इजी था। ऑनलाइन फॉर्म भरना था, तो मैंने भरा। एंड मतलब उस टाइम पे बिलीव नहीं था कि स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि आई वाज इन जलगांव एंड पुणे से मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी भी या नहीं ये पता नहीं था। लेकिन विद इन 10 days आई रिसीव कॉल फ्रॉम स्कॉलरशिप टीम, and then I received the scholarship, and that's why I'll be able to take admission for BCom and MCom. And now for books, study materials, everything, for everything MVPM provide me scholarship, and that's really helpful for me. And now I'm in future my plan is to become CA. I'm planning for CA, and I promise MBPM that once if I'm settled in my life, so I'll definitely pay back to MBPM. Thank you so much. Very noble thought, Madhuri, and we appreciate your gesture. We also have Vinay here. Vinay, please. उपस्थित सभी को और श्री वसंत जी राठी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं विनय प्रवीण कुमार जी नावंदर, तालुका अंजनगांव सुरजी, अमरावती से पुणे अपनी इंजीनियरिंग करने आया हूँ। मैं करंटली पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ। सो एज वी ऑल नो कि लैपटॉप इंजीनियर के लिए एक इसेंशियल नीड है, क्योंकि विदाउट लैपटॉप यू कैन नॉट स्टडी फर्दर। लाइक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरे टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, एंड विदाउट दैट यू कैन नॉट स्टडी दैट सब्जेक्ट।
सो जैसे ही ये चीज़ हमारे हॉस्टल के अध्यक्ष श्री आशीष जी बिहानी को पता चली, उन्होंने पूरे हॉस्टल में हमें यानी बच्चों को बताया कि एमवीपीएम का लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी होता है, एंड उन्होंने जो बच्चों को नीड थी उनसे फॉर्म फिल करके लिए। आफ्टर दैट विद इन 2 वीक्स मुझे एचओ से कॉल आता है, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन डेट थी उसका पता चलता है। आज वो लैपटॉप की वजह से मैं मल्टीपल स्किल डेवलप कर पाया हूँ। जैसे कोडिंग में मैं 3 से 4 लैंग्वेजेस अभी तक सीख चुका हूँ। उसके बाद में मेरा और भी यानी अभी मेरा ये प्लान है कि आगे जैसे मैं मेरा एक स्टेज पे सेटल हो जाऊँ, आई विल यानी मैं भी मेरे जो मैं जिस सिचुएशन से गया हूँ उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूँ थ्रू एमवीपीएम। आज मैं सभी मेरे और मेरे जैसे जो बच्चों को एमवीपीएम सपोर्ट कर रहा है उसके लिए सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। Thank you very much, Vinay. This is basically the time that we have been waiting for since probably, I don't know, as far as I am concerned, right from the time we decided that we will have this session, this is the moment that I have been waiting for and looking forward to. I had a glimpse of this a little bit yesterday, and I'm trying to put in front of you what I have understood as a little bit as the journey of Shri Vasantji Rathi. The way I would put it, if I have to try and put it in words, is it is nothing short of extraordinary. A journey of grit and determination, which to me is the essence of entrepreneurship. And he embodies that truly and completely. And I'm sure over the next maybe 40-45 minutes, all of us will get to an agreement on that same point. And I'm hoping that's what I'm able to get across to you. Starting from a very humble family, born in 1915 Yeola. And by the way, he shared with me that his birth certificate is not his actual birth date, but that was a common feature at that point in time. And I can tell you this, I have seen, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रीजन है ना, येवला, नासिक, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर मेरी ससुराल है, वहाँ पे ये डेट 1-2 साल आगे पीछे करना कॉमन था शायद. I have no other intention of trying to take it to anybody else. बस ये ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको. Um, but from that point to having an empire, I would call it an empire, which spans 45 countries across 25 different industries with multiple different companies, having a footprint in India as well as in the US, is a journey that is not at all short of inspiring. And that is exactly the reason we are saying the inspiring journey of Shri Vasantji Rathi. May I request him to please come and address us for a few minutes, and then I would have the privilege of engaging in a dialogue with him further. Sir. थैंक यू आनंद. मैं हिंदी में बात करूं, मराठी में बात करूं, मारवाड़ी में बात करूं या अंग्रेजी में बात. मारवाड़ी में बात करो आप. चला मारवाड़ी में बोलो, क्यों नहीं. तो पहले माका सीनियर अटे बैठेला आहे रमणजी करवा. और माका मारा सीनियर था, मैंने शिकाय भी तो सम क्लासेस. चांडक जी माका सीनियर घना सीनियर लीडर है सगळी कने. इज अ ग्लोबल लीडर. तो सब जगह सगळा सगळ्या ठिकाणी जावे, सगळ्यांनी कनेक्ट करे. ही इज अ ट्रूली इंस्पायरिंग पर्सन. ओके. शेखर ने तो मैं घना साल से जानू, छोटापन से. इट्स जस्ट ग्रोन इन फ्रंट ऑफ मी. तो आई एम ग्लैड लीडरशिप करे अठे आणि या संस्थाने आगे बढ़ा रहे हो. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. एंड ऑल द वॉलंटियर्स सगळा जना अठे इतना काम करे है. मैंने मैंने चांस मिलो सगळ्यांना मिलन को, बोलून को, बाता करन को. पण उकापेक्षा भी ज़्यादा काही है कि घना सारा रिश्तेदार मैंने मिल गया कि जिन्हें मैं ओळखतो भी नहीं जल्दी. कारण टाइम निकल जावे आणि टावर छोटा का बड़ा हो जावे, आप लोग काही कॉन्टैक्ट रहे कोनी आका साथ. आणि પછી समझते कोनी, ध्यान में नहीं रहे जब तक कोई ओळख करके नहीं देवे. तो घणो चोखो वाट्यो आज अठे आकर. कारण या 67-68 में मैं अठे टाइम बितायलो या हॉस्टेल में. आणि घणी सारी वेरी इंटरेस्टिंग मेमरीज रहे सगळी छोटापणा की. छोटं म्हणजे दॅट वॉज नॉट अ व्हेरी स्मॉल किड, बट स्टिल काय रहे की आयुष्य में
at my age, like 75 साल में, running 75, you forget, अपन घना साऱ्या बात भूल जाओ. फकत काही चुकी चुकी बात माथा में रहे, you know, कारण जर्नी घनी लंबी रहे ना. So a lot of things you forget, and there छोटा घना घना सारा किस्सा रहे आपला आयुष्य में का जिका ध्यान रखने जैसा नहीं रहे, पण काही किस्सा कायम के ध्यान में रहे. एक अटे की या जी की संस्था है, वह एक हमारा आयुष्य में घणो काम करेलो, मैंने मालूम भी नव्हतो, पण चांडक जी का वजह विकासू कनेक्शन हुयो. बिझी उजावा आदमी आपला आपला काम में, यू नो, आणि सगळीकडे जावता नहीं आवे. घणीदा याद आवे. હવે औरंगाबाद में फैक्ट्री शुरू करे, सुरेश सरको आटे घरे आवतो હતો, प्रकाश, all these people याद रहे कि काही होता, गप्प पत्ता खेळता होता, यू नो, ऑफिस में आया पछे. These are all small memories and good memories remain with us. आठे आया पछे मैं जब सगळी कने देखो, जत को हॉस्टेल, आठे अब्बार को हॉस्टेल, आज काहीच ओळखू नहीं आवे. इन जमीन आसमान को फरक है. फकत जुनी यादा रह जावे कि आठे थो, आठे आठे टेबल टेनिस खेलता, आठे आठे मैच थी, आठने यो थो वो थो ईशो. तो आई एम रियली ग्रेटफुल. मैं घणो ताका सगळा को घणो आभारी हूँ कि मैंने ते आटे आवन को चांस दियो. मैं तो इकास ते कर्यो कि अपना 5-50 सोरास का साथे गप्पा मारने मिलीला, आणि यानी इतो बड़ो कर दियो को किने के ना छोटो राय को इतो पतंग सगळा जण म्हणने को ताको प्रोग्राम है, ताको प्रोग्राम है. यो काय को प्रोग्राम है. I mean, पण मैं ताका ताका जी का ईमेल वगैरह सगळी कने जावे, तो इट seems like reflecting सगळा साथ. बाय द वे, मारो बीच में अंग्रेजी आईला वाला किया है, एकदम 100% मारवाड़ी नहीं आवन को, पण कारण सवय नहीं रही ना कहीं सारखी बोलन की. पण वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. घणो आभारी हूँ मैं सगळा को थे आजे आया आणि ताका ते बोलन को चांस मिल रह्यो है. घणो घणो सारो शिकने मिलियो लागला 50 साल में, 55 साल में, 67 to 74 now. Okay. पण दो बातें बता दी थाने बिफोर वी गो इनटू कॉन्वर्जेशन की हे शिकन सगळा जना घरा बड़ा बोला. मैं थाने कह दियो अब्बार विद द डिफिकल्टीज, कारण अब्बार को जमानो अलग है. द कंट्री घनी फास्ट फॉरवर्ड हो रही है. मैं थाने क्यों, कारण मैं सको दुनिया फिरे लो और फिर तो रही सर को, एंड मैं हाल भी घनो एक्टिव बिजनेस एज वेल एज दूसरा भी काम में. सो थाको कोई भी करियर लो थे, इट इज जरूरी नहीं है कि आपल्याने कंप्यूटर सायन्सच करू चाहिए. अब्बार कंप्यूटर सायन्स किंवा AI को घणो बड़ो यो है प्रसार है. पण थे कोणचो भी करियर करो, एक बात जरूर रखो कि उका में थाको पूर्ण पूर्ण भागीदारी, ताकि मन से पूरी यह हुई चीज है कि दिल से करे चीज. या भाई कर रही है, यू नो, सिनेमाग्राफी, आर्ट एक्सेट्रा, घनी सारी चीज़ आहे दुनिया में जी की सगळा जण एक्सेल होईला. कारण काही आहे आपलो समाज याने की वी आर व्हेरी एंटरप्राइजिंग आणि फॉरवर्ड लुकिंग पीपल. समजा की सगळा एकामध्ये जावा तो every one of you are going to make lots of money. Let me put it very simply. Okay. पैसा सगळा जण ते मिलाओ, that's not a problem. प्रॉब्लम कथी आहे मालूम है, द लाइफ, यानी लाइफ किसो गुजारनो, हाउ यू वांट टू spend your life by rat race of making money or life with a full of happiness. तो आपला पूर्वजांनी आपल्याने घना सारा बाता शिकायली है जिका अपन भूल गया. कारण वी आर ट्राय, हम लोग सब अपन सगळा जना फकत वेस्टर्न अनुकरण करने को प्रयत्न करा. कारण का ये कि अमेरिका में याने, UK में याने, ऑस्ट्रेलिया में याने,
याको अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करा. आणि उका उका सते आपला नहीं इशू वाटे कि आपला घर में काही कोनी है, काही पिताजी ने काही समझे कोनी, दादाजी तो यानच है काही. हाँ, तो यो भूलो मत इथे कि वाणी जी को आपको जी को नॉलेज यानी यो है विच इज प्रूविंग साइंटिफिकली, बिकॉज मैं तो साइंटिफिक आदमी हूँ ना, एंड आई कैन टेल यू सो मेनी स्टोरीज अबाउट इट, वेरी साइंटिफिकली ट्रू. ओके, आपण उन्हें धर्म में चेंज करा, कारण बा बघा तिथं शिक्षण नव्हतं ना, तो आदमीने फॉलो किशो करायची जे, तो उन्हें धर्म में पुण्य पाप में बदल दिया. बट इट इज वेरी साइंटिफिक. तो आपलो जी को यो है काय कहेवाय विरासत है आपली, आपला बाप जाता एक पुण्य, वह कधी भूलो मत इथे, वह पहले शिको बिफोर यू गो एनीवेयर एल्स. अबे ये अटे बैठेलो है पुणे में, यूएस में आकर पाछो शिक्षण अटे आएलो है, पाछो पुणे में काम कर रहे है, समझ में आएला थे कसं बात करो कधी पण. बट वो एक बात थाने क्यों नहीं थी, कित्येकदा थाने देखे कि अपन धर्म का बारा में भी अभी देखे, अभी घणो घणो बदल गयो. सगळा जण जय श्रीराम करणे काही अभी वांधो नहीं दिए कधी. पहले आपण जरा घाबरता, जय 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 की भी केवना मुश्किल होतो, जय श्री कृष्णा भी केवना मुश्किल होतो. पण अबे बदल रह्यो है, एंड दैट इज टेक इट विथ प्राइड, हु वी आर, व्हाट वी आर, and we will revolutionize the world. I can tell you that, guarantee you that. कारण जब मैं गया 92 में मैं इंडस्ट्री आटे खोली पाछी, मैं क्यों जब दुनिया कर सके तो अपन क्यों नहीं कर सकते. वी आर स्मार्ट पीपल, ओके, एंड बिजनेस पीपल क्यों अपन, कारण वी हैव एमबीए करके अंदर सगळ्या कंपन्या उघड सकता, तो मारवाडी कधीच या स्टेज नहीं होता ना. ओवरऑल सोसायटी इज एडवांस सोसायटी. आपला कने भी अपना सोसायटी में भी कई जन है बैक इनकम है, यू नो, लो 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 इनकम है एक्सेट्रा. पण ओवरऑल वी हॅव आपल्याला सगळ्यांनी वाणी मदत करायची है. एवरीबडी हैज टू वर्क टुगेदर एज अ सोसाइटी. इतनी छोटी सोसाइटी है, देखो आटे बैठे आटे उभो रही हो तो कितना कनेक्शन, 100 कनेक्शन निकल गया. तो अपन एक दूसरे ने हेल्प करायची है. दूसरी बात या भाई कितना इनिशिएटिव्ह सुरू करेला आहे सगळ्या जण आठे, आणि आय एम सो प्राऊड ऑफ इट, यू नो. पण सगळ्याने व्हॉलेंटियर्स काम करायचे आहे, कारण मैंने मारो 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 कर देखकर मारा थाली में का ये देखने पेक्षा आप थका थाली में भी आएला जब अपन देवा. नेचर को एक सिद्धांत है, थे एक बाजरी को दानो जमीन में फूके पेरियो तो सारे भर भर कर धान्य, है कि नहीं. सीड्स नेचर को सिद्धांत है, आप लोग थाकोमाग नहीं है. तो अपन जी को देवा वो कितना पटी से बार भगवान पास देवेला. ओके, पहले पण केपेबल हो, डोंट ट्राय टू. आणि आपला हिसाब से यीशु जितो करता आयला किने करता आयला यीशु, आपण आपला आपला विकास करो. यीशु नाही की दुसरं असं हे लेकर करणार. आणि फॅमिली व्हॅल्यूज ने कधी मती, कारण शेवटी कितो भी हुया पछे फॅमिली इज द ओनली थिंग विच काउंट्स एट द एंड. ओके, हे मारो. Check. Check. Audible? Am I audible? All right. What does one say after you listen to something of that kind? Highly inspiring in 5 minutes. अपन हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कोई लंबा चौड़ा लेक्चर सुने तभी जाके कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ बोध मिलेगा. लेकिन वसंत सर ने, एंड ही हैज एक्चुअली गिवन मी परमिशन टू कॉल हिम काका जी, और वैसे तो पापा के फ्रेंड है तो काका जी तो बन ही गए हमारे लिए. तो काका जी ने 5 ही मिनट में जिसको बोलते हैं ना कि जीवन का सारांश अपने सामने रख दिया.
तो उनसे और वार्तालाप करने के लिए आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज let's understand where all of these thoughts come from, right? So once again, welcome him. Sir, you talked about your early childhood and family values. वो आपने जो बात करी वो मेरे लिए बड़ा घर कर गई उस दिन। येवला जैसे छोटे से शहर से, या शहर बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, गांव में। और बाय द वे आई कैन एक्चुअली मेक दिस स्टेटमेंट टुडे दैट येवला जो सिर्फ पैठनी के लिए पहले फेमस था, वी कैन नाउ से कि येवला विल बी फेमस फॉर पैठनी एंड वसंत राठी। इज दैट राइट? कैन डेफिनेटली से दैट। So, sir, we'd love to understand a little bit more of that childhood of yours. Thank you, Anand. येवला, how many of you know येवला? अरे बाप रे, इतने लोगों को मालूम है, क्या बताऊं। बचपन में हमारे पास में बाइसिकल होती थी, यू नो इट इज बिग डील। 11वें में मुझे पिताजी ने पहली बार बाइसिकल दी, तो हम, यू नो इट वाज लाइक आसमान मिल गया। हम लोग स्कूल में जाना है तो येवला महाविद्यालय था, तो येवला की शाला की जनता विद्यालय जाके पैदल जाते थे वहाँ पे। ओके, और बाइसिकल तो और ही बड़ी बड़ी बात हो गई। क्रिकेट खेलने के लिए जाना, इधर उधर जाना, कोपरगांव जाना, शुगर फैक्ट्री को वहाँ पे जाके क्रिकेट की मैचेस खेलना। अरे उसको इमरजेंसी लगे तो मुझे बोला, मैंने रोका तो उसको लगा कि हाँ, तो आधी चड्डी में घुमा करते थे, यू नो। घर में कोई इतना तो ये नहीं है कि भाई, अभी के बच्चों को तो सब कुछ मिल जाता है, यू नो। इट इज अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी टुगेदर, वी हैव नथिंग। वो सभी सुनते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं, इस बराबर है। वी आर द ओनली जनरेशन, चांडक जी की जनरेशन है, रमन जी की जनरेशन हमारी। वी हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग टू कंप्लीट एज टुडेज एआई रेवोल्यूशन हैपनिंग। अभी तो हम पहले पिताजी की, दादाजी की, सबकी बातें सुनते थे, अभी बच्चों की बातें भी सुनते हैं, यू नो। बताना ही पड़ते, वही उनका उनका सुनना पड़ता है, ये ना जानने की। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग कि वहां पे कुछ नहीं था हमारे पास में, न लाइब्रेरी थी ना कुछ था। मैं पहली बार जब पिताजी ने मुझे कॉलेज में, फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन पे ली, तो यहाँ पे लेके आया हाथ, पहली बार गांव से बाहर आया। मूवी देखने को नहीं मिलती थी हमारे, एक पुराना स्टेशन, एक सिनेमा गृह है, वहां से पीछे जाके जाके देख लो तुम, वो पार्क कभी भी मिलते हैं हमको, पार्क सर। तो यू नो बड़ी गजब की चीज थी। भाई वो सगळं छोड़कर तो पुणे ने इतना बड़ा शहर में आया पचे, यू नो इट जस्ट माइंड बॉगलिंग। सगळा पिक्चर देखने में जाओ तो उनसा ही थी, क्योंकि दो दो तीन तीन पिक्चर देखे लायक एक दिन में। पण फार्मसी में जो एज्युकेशन भाषा निघणं आग्रह करे, यू नो गो टू द फार्मसी, कारण पानी सुरू करेल तो एंजाइम को बिजनेस पपाया करून लॅटेक्स डरता। तो मैं मैंने केमिकल इंजीनियर होना, तो हमारा छोटा भाई केमिकल इंजीनियर का पीछे, तो फार्मसी कॉलेज में गया, तो नागपुर में પછી મને ભાઈજી મળ્યા ઉઠે। અને सीधी बात थी फार्मसी करनो, पण जब फार्मसी ध्यान में आया पछे कि यो न्यूज तो मैं लोग सप्लायर था, रॉ मटेरियल सप्लाई टू द इंटरनेशनल कंपनीज। तो इंटरनेशनल कंपनी जर रॉ मटेरियल अपन सप्लाई कर सका, तो अपन फिनिश प्रोडक्ट क्यों नहीं कर सकते? दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ना। मैंने कहा फिर यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ यूनिवर्सिटीज, कसं ते बातचीत कॉरेस्पॉन्डेंस कर, प्रोफेसर्स वका पेपर देखना। अभी लाइब्रेरी नहीं मिलती, कहीं रिसर्च करना कठे करना जी कोई मालूम नहीं रहता। तो मुंबई में जाकर मुझे लाइब्रेरी में जाकर मैंने देखना पड़ता, कठे कई पुस्तक मिले, कई रेफरेंस मिले कि कौन सा यूनिवर्सिटी का कठे का ये, यू नो। वो जब नहीं मिले तो मैं दिल्ली में जाकर बैठता लाइब्रेरी में, दिल्ली की बड़ी लाइब्रेरी में जब पुस्तक मिलता रेफरेंसेस का इतके। अब कितो आराम से हो गया, यू नो। यू हैव लैपटॉप, you can research anything all around the world, any research you want to do, काही पण करून शोधता बोल जावे।
But that facilities are now available to our all kids, students. आणि उको पूर्ण फायदो होते. That is आपल्याकडे जी की लॅक ऑफ इंफॉर्मेशन है. नाउ अभी अपन पैटेंट वगैरह में घर ध्यान दे रहे हैं. न्यू रिसर्च, नया यूनिकॉर्न्स तैयार हो रहा है अपना इंडिया में. You know, billions of dollars of financing. So this story હવે લાલા या सातून घणी बदल गई. पण येवला जे शहर में माने फक्त एकच तो कि we want to be the best. एंजाइम में करना है तो बच्चे we don't want to be just a raw material supplier. We want to be a finish supplier. You know. एक छोटी सोच, छोटा विचार बोलूंगा, लेकिन कितनी बड़ी सोच कि we want to be the best. See what that can dramatize the entire life of a person to be. आपने बताया नहीं पूरी तरह से, लेकिन 11वीं तक येवला में थे, वहां से बाद में पूना में आए. The reason he left Pune was he was not able to deal with the education at that point in time. He failed and he went to the pharmacy college after that. So there was a agreement between father and son that if you do well, you get your choice. If you don't do well, you do as per my choice. I think the father prevailed and we see what it has transformed him to be. वहां से नागपुर गए, नागपुर से आगे की उनकी जो जर्नी रही, he went into the research process from there on. But sir, नागपुर से होनोलुलु, ये वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट दैट आल्सो इन अ फ्यू मिनट्स. पहली बार गांव से जा रहे थे बाहर. यू नो, हमारे सभी फैमिली पहली बार जा रहे थे गांव से बाहर. हमारे सभी फैमिली में इट वाज लाइक अ प्राइड. अमेरिका जा रहा है कोई, यू नो, कोई किसी को जानता नहीं था. पूरा गांव छोड़ने के लिए आ रहा था, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग. बहुत तकलीफें थी पिताजी को. उन्होंने कहाँ से कैसे निकाले कितने के लिए, यू नो, दैट इज ऑल दीज स्टोरीज, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन हियर फॉर अदर्स आल्सो. मगर पासपोर्ट भी नहीं मिलते थे उस जमाने में. एक पासपोर्ट निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, क्या बताऊं आप. मगर 2010 आफ्टर दैट मुझे टिकट दिया जापान एयरलाइंस का. तो टिकट लेने के बाद में पहली बार प्लेन रुकता है जापान में, टोक्यो में. तो उस वक्त कुछ तो भी $30-40 देते थे, ₹8 के हिसाब से, समवेयर अराउंड इतना ही मिलता था, ज्यादा नहीं आपके खर्चे. तो जापान में रुके रात को, कुछ पता ही रुपीज और उसमें कीमत की देखो तो दिल धड़कता है ना, कैसे खर्चा करें, पैसे नहीं. तो हम तो जा भी नहीं सके कि टोक्यो घूम के आ जाए, क्योंकि वो बस के लिए जो पैसे मांगते थे वो हम दे नहीं सकते थे. तो वैसे दूसरे दिन प्लान करके हम होनोलुलु पहुंचे सुबह. आइडिया ये थे कि हमारे प्रोफेसर आएंगे हमको पिकअप करके हॉस्टल लेके, कॉलेज कैंपस लेके जाएंगे. उनको हमने टेलीग्राम डाल दिया था. उस वक्त टेलीग्राम ही बहुत चलता था, फोन की तो ये नहीं. हमने वहां पे पहुंचे और सोच रहे कि प्रोफेसर आएंगे. वे हाथ में जैसे जापान से निकले तो सूट भी पहन के, टाई लगा के, मम्मी ने इतना बैग भर दिया था कि पूछो मत. सब जैसे कुछ मुझे खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू नो, अभी भी करते हैं कुछ लोगों के लिए. तो वहां पे जाके खड़े रहे और ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं. ये आदमी कौन आया है, कोई नया प्राणी आया हुआ, यू नो. इस टैग उन्होंने कोई टाइम नहीं लगा था. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दैट्स अ ट्रॉपिकल आइलैंड एंड सब लोग वेकेशन के लिए जाते हैं हवाई में. ओके, पढ़ाई के लिए कोई नहीं जाता. तो इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग. एवरीबडी इज लुकिंग, कहाँ पे जाना है आपको, वेयर आर यू गोइंग. सबको बता रहा हूँ कि मैं, मेरे को यूनिवर्सिटी में जाना है. कैसे जाओगे? तो बोले कि एक तो 3 बसेस बदल के आपको कैंपस लेके जाएगा, फिर टैक्सी पकड़ के जाओ. भाई टैक्सी पकड़ के जाना तो पैसे देना पड़ेगा, यू नो. चॉइस नहीं था. तो फिर हमने टैक्सी में बैठ गए. कोई चॉइस ही नहीं है. अभी ये बड़ी बड़ी जगह लग के कहाँ जाएंगे. टैक्सी में बैठे और वहां पे अभी टैक्सी का मीटर चढ़ता है और हमारा मीटर बढ़ता है. छाती के दर्द बढ़ते चली जाती है. तो उसको मिलता नहीं है कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्टूडेंट के. सो वी फाइनली उसने देखा मेरी तरफ, बोले साहब यहाँ पे आप, यू गेट डाउन हियर, keep your bags in the corner of one of the building and try to find the international students. So anyway,
we found it in rest of the history, but मजेदार इस जर्नी होती है कुछ. वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड. तो वहां से आपने आपका आगे का एजुकेशन कंप्लीट किया. उसके बाद में यू स्टार्टेड वर्किंग, एंड फॉर द इनिशियल इयर्स you were in a job. That shift from a job to decide to become an entrepreneur, that's probably something that each one of us, हम आप मारवाड़ी आहात, आप बोल्या जाल, तो वो आई वुड से कीड़ो अकीड़ो, कि भाई खुद को करूं मैं कहीं जिको भी करो जिको. तो how does one recognize that, and how did you take that leap of faith that I want to do something and set up on my own? काही रहे कि आयुष्य में घनी सारी बातें फेल्युअर्स ते शिको विथ योर ओन फेल्युअर्स. तो फेल होने डरो मत. टेक एन इनिशिएटिव व्हाट यू लाइक. आपल्याला जिको आवडे, यू नो, इट टेक्स टाइम, डिटर्मिनेशन, एंड यू वांट टू कंटिन्यू ऑन दैट पाथ. It takes a lot of guts for anybody to even take a step to go international. Now it is easy. I'm not saying that it is not, but still there are a lot of challenges. घना सारा challenges there है. And everybody is trying to make it easier for you. But a gap, the goal was clear in life. We wanted to start आपलं जिको जिकास्ते गया उकास्ते गया पासवा होणं आणि इंडस्ट्री उभी करणे. आणि आया बरोबर 70 पण उका पहिले थोड़ा पैसा तो कमाया चाहिए ना, कारण मारवाड़ी भाई आपण इतो खर्च करियो शिक्षण में, तो थोड़ा सा आणि थोड़ा सा यो भी समझे ना, एक्सपीरियंस भी आवे. आठे तो काही इंडस्ट्री हेच कोणी आहे. सो 2 साल काम कर मैं 5 को सोडकर आ गया. 77 एक सभी से अनुरोध है, फोन्स प्लीज साइलेंट पे डालिए, वो रिकॉर्डिंग में बाधा आ रही है. जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट. Sorry, sir, for that interruption. So the thing I take from that is, I've read this somewhere. It is not failure that we are more scared of. It is the fear of failure that we are more scared of. And I think a lot of things that we don't do is more out of the fear of a failure, not so much of the failure itself. So, sir, thank you for enlightening and bringing that back to us today. Your first venture also was not the best for you. No, we felt we were very confident, overconfident कि भाई हम लोग मेरे भाई ने शुरू किया इन औरंगाबाद. मामा जी का जगह थी, हमने खरीदी की, वहाँ पे रहने लगे, प्लांट खड़ा किया. मगर our business was all dependent on international market, and it was agriculture based industry. तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि देयर इज अ क्रॉप कम्स ओनली एट सर्टेन टाइम. नहीं, उस वक्त आपको सोचना पड़ता है कि कितना माल बेच सकोगे, और पहले यू आर टेकिंग अ गैम्बल टू अ पॉइंट. एंड एट दैट टाइम पैसे बोरो करना है तो 24% से बोरो करो बैंक से. इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल टू compete in the international market with the money you take. तो बिजनेस में ऐसा होता है ना कि हमारे जो पूर्वज जो बताते हैं, बड़े पैसा जमाते थे और उसको बराबर काम में लाते थे. हम बोलते थे चिंगूस है, कई बार खर्चा नहीं करते, मगर देयर वाज अ रीजन फॉर इट. समझे क्या? वो छोड़ के आए थे अपने गांव, राजस्थान या जहाँ से भी आए होंगे, और उनको पैसे की कीमत थी. हम लोगों को पैसे की कीमत नहीं थी उस वक्त. हम आए, बोले क्या बात है, हमको तो सब जानते हैं, हम लोग दुनिया पूरी घूमे हुए हैं, बेचेंगे. मगर जब पता लगा कि नहीं जा रहा है सब माल, जो भी आदमी आप किसी के पास में जाओ तो वो छोड़ के कहाँ दाम घटा के बता रहा है आपको, ये इतने में चलेगा या नहीं चलेगा, या अभी मुझे नहीं चाहिए, क्या करोगे आप उस माल को. तो ऐसे कई घटनाएं होती हैं जो विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. बिजनेसेस में कई चीजें आती है, कई पड़ाव होते हैं. सो कैश फ्लो बिकम्स अ किंग in the business, and one has to be very careful of how you expand your expenses. Okay, expenses, पैसे खर्चा करना बड़ा आसान है, मार्केट लेना बड़ा मुश्किल काम होता है. पैसे जल्दी से नहीं आते. अभी तो पिताजी जब तक देते हैं तो बड़ा आसान काम है, you know.
तो आपको पैसे आ जाएंगे। मगर जब आप मार्केट का बड़े होंगे, कुछ धंधा शुरू करोगे, इट्स नॉट वेरी इजी। दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी इजी, नाउ इट इज रिलेटिवली इजी, बट स्टिल बिजनेस प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। I would kind of agree. Business principles can't change, and cash flow always remains king in business. And as a finance profession, I often tell people that price is given by the market, cost is what you can control. So profit, therefore, is not cost plus. Profit, therefore, is price minus. And therefore, that's the way you look at it. And that's how you actually make money in business. So thank you once again, sir, for that. आपने अपने पिताजी का जिक्र किया. But there were two personalities in your family that you talked about who had inspired you or were very close to you. One was your father, the other was your grandmother. Yes. Some memories of both of them. Could you share with us? मैंने बताया कि हमारी पूरी कौम है, मारवाड़ी समाज है, वेरी वेरी इनोवेटिव, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग कम्युनिटी है। आई टेल यू, बी प्राउड ऑफ वेयर यू आर, हु वी आर। उस समय मेरे दादी जी ने सबको बताया कि ये वसंत तो अमेरिका ही जाएगा, ही विल गो टू फॉरेन एंड ही विल एजुकेट। तो सब ने पकड़ लिया दादी को, अरे इसको मत भेजो, ये कुछ तो भी शादी विधि कर देगा उधर, इसको शादी करके भेजो। नहीं, बोले इसकी शादी नहीं करूंगा। हाँ, दैट वाज द टाइम, डिफरेंट हाँ, वही था। तो नहीं बोले, हमारी दादी ने क्या, नहीं ये शादी भी नहीं करके जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा, ये पढ़ाई करने जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आए, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी था उन्होंने, इट वाज हर फॉर विजन, इट इज हर विजन, इट इज हर डिटर्मिनेशन। और बता दूं, दादी भिड़ो थी 20 साल से, 20 साल की थी तब से भिड़ो थी। हमारे पिताजी को 2 साल का लेके हाथ में घूम। सो इट इज, देखो कई चीजें हमारे लाइफ में जो होती है ना, हम सोचते हैं कि हमारे से होती है, ये सिर्फ अपनी कर्म अपनी तो होती है अपने, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट कई चीजें हमारी ये जो विरासत होती है ना, उनके जो पुण्य, हम पुण्य कहते हैं उसको, उनकी वजह से नेवर फॉरगेट दैट। हमारे समाज में कहते हैं कि कई लोगों के हम देनेदार लगते हैं इन आवर लाइफ। तो हमारे पूर्वजों के देनेदार लगते हैं, हमारे सोसाइटी के देनेदार लगते हैं, हम हमारे दोस्तों के देनेदार लगते हैं। कई लोग अपने जिंदगी में आते हैं जो आपको हेल्प करके चले गए, यू नो। सो कई लोगों का हाथ होता है उसमें, कई लोगों की समझ होती है, कई लोगों की। तो इसको न कभी भूलो। तुम बहुत बड़े बन जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, पैसों से कुछ नहीं होता। पैसों से कुछ चीजें मिलती हैं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, यू नो। मगर जो चीजें हमको चाहिए, वो जिंदगी में खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो सिर्फ पैसे से नहीं मिलती। पैसा सिर्फ एक है, साथ सुकून है, सबसे है हेल्थ। ओके, तो अभी हेल्थ के लिए आपके यहाँ पे देखो अच्छी जिम बन रही है। हेल्थ आखिरी में नहीं होती। मेरे जैसे एज होने के बाद में आप हेल्थ की भी सोचेंगे तो डॉक्टर की ऑपरेशन करोगे बस, और कुछ नहीं करोगे, यू नो। चल भी नहीं सकोगे, बाथरूम को जाने के लिए भी आपको हेल्प। तो ये हेल्थ अभी से कल्टीवेट करनी पड़ती है, और उसके लिए अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू इन एवरी डे। ओके, आधा घंटे का मेडिटेशन करो, अच्छी स्लीप ध्यान में रखो, यू नो। स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम सोशल मीडिया के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रात को बैठते हैं फोन सामने, 2 बजे उठ के फिर से फोन सामने, एंड ऑल दिस नॉनसेंस न्यूज, वही सारे टिकटॉक की वही सर्कुलेट होते रहती है। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड टाइम आपको कहता हूं फिर से वापस नहीं आता। आप कितने भी पैसे खर्चा करो, कोई वापस नहीं। सो फ्यू थिंग्स इज वेरी क्रिटिकल।
sound issue with that mic. शायद इसमें आवाज ज्यादा क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी मेरा आवाज गिर जाता है और मुझे सर्दी भी हो गई 2 दिन नहीं से। सर, यहाँ ये सिचुएशन ऐसी है कि आपकी बात यहाँ से 12,000 मील दूर भी लोग सुन रहे हैं, तो आपकी अच्छा। आवाज वैसी आनी चाहिए, इसलिए आपको हाँ। माइक बड़ा वाला दिया आपको। ओके, तो दैट वाज अबाउट द इंस्पिरेशन कि दादी जी ने जो इंस्पायर किया, उसके बाद से वसंत जी, ऑफ कोर्स लाइक ही सेड, रेस्ट इज हिस्ट्री, नाउ मल्टीपल कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। सर, one question that I was not able to sort of ask you earlier also, but there is family business and then you make that a professional business. You're now running a business enterprise, which, by the way, he employs close to 1,000 employees across the world, and that's not a small size of an organization. Well, standards. How does one build an organization? Very grateful and thankful. I'm so proud of our people. इतना डेडिकेशन, इतना हार्ड वर्क करते हैं, क्रेडिट मैं लेता हूँ, मगर रियली इट इज देयर वर्क। ये जो है ना, हमारी, आई टेक अ प्राइड इन रिसर्च, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही रिसर्च रहा है, एंड साइंस में रिसर्च जैसा और कोई चीज़ नहीं होती। और अभी जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी रिसर्च बेस ही रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न भी आप देखोगे रिसर्च की वजह से ही आगे जाए ना, तो रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। मगर ये जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, पहले जब आपको बताता हूँ, 2000 में जब शुरू में हमारी कंपनी शुरू की हमने, हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया था कोरियन और जापानीज, कोरियन लोगों से। बड़ी कंपनी थी पैसिफिक केमिकल्स करके, उस वक्त मल्टीनेशनल थी। तो वो लोग हमको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं और मेरा भाई वहाँ पे जाके कई चक्रे लगा के आ गए, बैठते थे, बातें करते थे। फाइनली दे एग्रीड कि भाई ठीक है हम देंगे, मगर देखने के बाद में देंगे, आर यू केपेबल। इंडियंस वर ट्रीटेड लाइक दैट ना, तो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थे, पैसे देखे। बोले हम आएंगे वहां देखेंगे, आप अगर केपेबल हो तो देंगे, नहीं तो नहीं, वो भी पैसे लेंगे। तो आइए, मगर it was so difficult. Even we started the company in 90s and in a very grand scale. I mean, huge investment. किसी में तो पैसे नहीं है, we started collecting from our friend circle, families वगैरह, 10-10 रुपए का शेयर निकाल के, भैया करोड़ कुछ डालो। पिताजी का तो हमने दीवाना लगा दिया था उनके पैसों का। So there was no money. पर ये सब लोगों ने हम पे विश्वास किया और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देन। सक्सेस के लिए कई लोग ज़रूरी होते हैं इसके, तो जैसे भी बढ़े हमारी वर्ल्ड में, जैसे भी जा रहे थे, मोर कंपनीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब वी आर कंजर्वेटिव कंपनी, अभी भी हमारी बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग होती है, कैश फ्लो बहुत, ये एक्सपीरियंस से होता है ना। we don't stretch ourselves to the extreme level. हालांकि कई लोग हमको पैसे देने के लिए 2 मिनट में चाहिए जितने ले लो, हजारों करोड़ रुपए ले लो, तो लेके क्या करोगे उसको, हाउ डू यू एक्सपैंड। और रात को सोने नींद नहीं खराब करोगे तो क्या करना है उसको। सो वी आर लिटिल कंजर्वेटिव कंपनी, बट ये जो हमारे आदमी है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, विच इज बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज देयर हार्ड वर्क, because of their dedications, we are where we are. That is your. So it's about valuing people when you get to it, and everything else gets taken care of by the people that you work with or who work alongside you. I can go on with all my questions, but I would, before I go further, any questions in the audience is what I would rather open it up for right now. किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली है। यस विनय। सो सवाल ये है कि
आपके लाइफ लेसन्स ऐसे क्या है जो यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा फॉर यंगस्टर्स? हाँ, आपकी स्टोरी मैंने सुनी। या बहुत सर माइक लीजिए। It was very good. I see that in engineering you are taking those things. I have one more suggestions. Computer में lab में देखा हूँ वहाँ पे कभी कई students are working and going with their laptop working. I have a suggestion for management that they should set up some computers. Those who cannot get laptops, they can go and work on the computers. 2-3 years के लिए lease लेके it can be renewed to a more advanced stages every time. Where computer lab is very essential. Okay. Besides laptops giving everybody laptop is not possible. But computer lab अगर बन जाए 10-15 computer, those who have a chance they can go and work on this, particularly in hostel. But life story यही है साहब. What I wanted to tell you is that determination, what you're doing, is extremely important. Have a clear vision. कई बार बोलते हैं कि हमको विजन ही नहीं है तो क्या करेंगे यार, ये ऊपर से थोड़ी गिरता विजन, So sometimes with the experience, कई फ्रेंड से बात करने में, कभी सर्विस करने के बाद में, you get something, और पढ़ना मत भूलो आज. No matter what age you are, whether you are 30, 40, 50, even if you're trying, learn something new technique, new language, new areas which can enhance your capabilities, or give you happiness and enjoyment in life. Even pottery सीखे तो भी बहुत अच्छी बात. Do you see what I'm saying? मगर रात को सोना मत भूलो. कंप्यूटर्स वगैरह बंद कर दो. Do 15 minutes of meditation सुबह शाम. यहाँ पे शेखर भैया बैठे हुए हैं. He is very much involved in the art of living. Take those small courses, samadhi, etc. क्या होता है उससे कि तुम्हारी जो memories है, जो bad memories in the whole day, we go through a lot of good and bad, सब clean हो जाती है. Clean it up सोने के पहले. So then it is not cluttering your computer, brain computer, right? So meditation, good sleep, exercise, okay, and hard work. Okay, there are few things which are very important in life. Success आएगा. There is no ifs and buts. क्योंकि this half an hour of पर जैसे मैंने पहले बताया था, never ever forget who you are. Be proud of us. We are Marwadis. Okay? Jai Shri Ram. मैसेज फॉर यू इज सिंस यू आर इन द कंप्यूटर लाइन, जैसे तुम मेमोरी क्लियर करते रहते हो ना, बस वही वही करते रहना है. क्लियर योर कैश, यू विल हैव मोस्ट ऑफ इट एवरी टाइम. That's basically what you should do. There are just before we go to the next question, the audience online also, if you have any questions, please type them out on the chat box and I'll try and voice them out for you. And so I will pose out. In the meantime, we have a question from the behind here. Yes, Sri Krishna. We have the growth of India and IT in last 20 years. What are the challenges to see the growth of BT, biotechnology in upcoming time? What to say with the potential for biotechnology? I think biotechnology has a wonderful future. See, the thing is, IT is good for the information technology. Information का क्या करोगे? Ultimately, what are we doing all of this for? Subject ये आता है कि हम information की technology बनाएं, सब करें, fastest घूमना शुरू करें. उसका करना क्या है आखिरी में? So, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. हम जैसे कहते हैं कि 60s में हमको तो खाने के लिए दाने नहीं थे. जय जवान जय किसान के नारे लग रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर लगा रहे थे. एक दिन का उपवास बता रहे थे. मतलब उपवास करना बड़ी अच्छी बात है. हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दिन उपवास करना, नहीं खाओ, वो अपने ऊपर का किचन बहुत अच्छा है,
आई नो एवरी संडे इज अ गुड फीस्ट, नो, बट एक दिन का उपवास बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। उसको उसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी। देखो एक बार बताता हूँ, एंजाइम के बिजनेस हो गया हमारा, तो एंजाइम के लिए जब गए हम, और जब जैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और समझना शुरू किया एंजाइम प्रोबायोटिक्स, एक बात समझ में आई, इतनी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। भगवान ने जब सृष्टि बनाई होगी, मेरे दिमाग में एक बार आया था कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने सोचा कैसे बनाया, किसी को सस्टेन कैसे करें, विष्णु जी का काम है ना, इसको सस्टेन कैसे। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि एंजाइम, एंजाइम जैसी कोई चीज नहीं, वही वो बनाता भी है और डिस्ट्रॉय भी करता है। ओके, तो हम जब फूड अंदर लेते हैं तो उसको कट करता है पूरा, बिल्कुल स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में, एंजाइम के बगैर हो ही नहीं सकता। और हम लोगों ने ऐसे ऐसे भी एंजाइम है जो ग्लूकोज को लेके फाइबर बनाते हैं, जो कि डायबिटिक कम करते हैं। हमारी अभी नई प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है उसमें। सो बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर तो जबरदस्त है। फार्मास्यूटिकल का कितना है मुझे नहीं मालूम, पर बायोटेक्नोलॉजी का है। सो थिंक अबाउट इट। अभी तो ट्रेंड रहता है, कई बार कई कई चीजें ट्रेंडी होती है ना, तो आईटी इज अ ट्रेंड। हर किसी को पूछो, सबको आईटी में जाना। Yes. Yes, Anaga. It's good for me because otherwise those questions get directed to me. So it's So even while you were answering this question, जब आपने enzyme के बारे में बात करना शुरू किया, we could see a spark in you. Like कि yes, this is your passion. So like you also mentioned before कि आप पूना में थे, फिर you moved to pharma. So how did you realize कि okay, this is not it. Now this is my passion. So my question is, how do you find your passion in life? वही बता रहा हूँ, आई एम लिटिल लकी इन दैट सेंस कि माय फादर डायरेक्टेड मी, यू गॉट टू बी फार्मासिस्ट, राइट। फार्मेसी करके आएगा तो धंधे में लग जाएगा, ही हैज अ बिजनेस, राइट, वेयर दैट बिजनेस वाज नॉट इंटरेस्टिंग टू मी। पैसे तो मिलेंगे मगर दैट वाज नॉट फुलफिलिंग इट। तो मैंने कहा आगे चढ़ना चाहिए, तो आई वांट टू स्टडी फर्दर। ठीक है, अभी स्टडी करना तो ऐसे ही एडमिशन लेके किसी भी कॉलेज में आने से कोई मतलब नहीं आता। आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक गोल, आई वांट टू लर्न रिसर्च इनटू एंजाइम्स। That was also very specific. I don't want just a basic research. I want to go on applied research, you know, and then communicating with the professors, corresponding with them, understanding their interest and choosing right person. तो जो जिंदगी में कोई अच्छा गाइड राइट आदमी मिल जाए ना, तो that gives you another inspiration. And then once you start into it, and then it is so exciting in research कि भाई जब आदमी हमारे लैब में काम करते हैं और दे आर, आई मीन, मैं जब यहाँ पे आता हूँ मेरा काम यही होता है कि मैं लैब में चल जाता हूँ, रिसर्च लैब में, और सब मैनेजर से बात करता हूँ, आपने क्या किया, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, विच रियली एक्साइट्स मी बिकॉज एवरी टाइम दे कम अप न्यू, दे नो हाउ इंटरेस्टेड आई एम। तो ये जो पैशन जो होता है ना, दिस इज द की पार्ट। मैं पहले ही बता रहा था कि आप कोई भी बिजनेस चूज करो, इट डजंट मैटर। काऊ डंग से आप कई चीजें बना सकते हो, काऊ मूत्र से भी, शेखर भैया कर रहे हैं, ही इज लीडिंग दैट, यू नो, दैट इज द बेस्ट, बताते ना पहले, मगर किसी का विजन रहा और वी स्टार्टेड बैक इनटू इट। तो कई चीजें ऐसी हैं बायोटेक्नोलॉजिकली है, तो विजन तो ऐसे एकदम सबको नहीं आता ना। सो वंस यू गेट इनटू दैट, आपको अच्छी लगती है उस बारे में, वेदर इट इज एनवायरमेंटल रहो, यू नो, ग्राफिक रहो, हर चीज में हम किसी न कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। दैट्स, वी नीड टू हैव पैशन। पैशन ये तो मत करो, पैसे के लिए मत करो। long and short of it is you listen to your father. Stick to it. हम्म? कौन सी पदार्थ? गव्य पदार्थ, गव्य गौ पदार्थ। देखो, नहीं, मैं अभी हमें वो थोड़ी सी बात वही कर रहे थे, जहाँ पे हमारा ऑफिस है गोपर, वहाँ पे द लार्जेस्ट डेयरीज आर देयर, बट देयर इंटरेस्ट इज नॉट, देखो इस यही सोच का फर्क पड़ता है, सोच का जो फर्क। मैं जब
यूएस में पहली बार गया तो मुझे खाने का प्रॉब्लम था क्योंकि मैं आई एम अ वेजिटेरियन एट दैट टाइम आई वाज। तो वही भाई जाओ तो वहां पे बोले मुझे सब लोग यही पूछ क्या खाना, तो ब्रेड मिल्क एंड पीच, वही किचन में मिलता था। अभी तो सब मिलता है, पिज्जा पिज्जा सब कुछ होता है, पास्ता पिज्जा सभी चलते हैं वेजिटेरियन। तो हाउ डू यू, तो everybody was asking me, where do you get your protein? Where do you get your protein? And अभी देखो दुनिया कैसे बदल गई है। Now they are vegetarian, trying to be vegetarian. हाँ? तो बात हमारे हमारे लोगों ने जो, मैं यही बता रहा था कि हमारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, हम उसको वैल्यू नहीं देते। तो ये गौ और ये भी जो आपने बताया भाजी, ये इसको वैल्यू नहीं दी हमने, गाय छोड़ दी। वहां पे तो क्या होता है कि वो कट करते हैं, उनको तो मीट चाहिए ना। तो एज लॉन्ग एज द काउ इज गिविंग मिल्क, इतना मिल्क निकालते हैं, इट्स हॉरिबल। इफ आई टेल यू द स्टोरी इट विल टेक यू half an hour, but I can give you every detail because I was involved into it. People came to me for enzymes देने के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा दूध कैसे निकाले, दैट इज वन पार्ट, ओके। बट सेकंड पार्ट वाज कि भाई उनका जो गौ का शेन बनता था, दिस इज अ कॉल टॉक्सिक वेस्ट in California. Why it is toxic waste? Because its pH is more than 9. Okay, 9 pH के ऊपर अगर तुम्हारी जो शेन नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, गोबर, गोबर शेन गोबर। गोबर को सुखाने के बाद में आप उसको इधर से उधर डाल भी नहीं सकते कि 9 pH के, तो धरती पे भी मिट्टी करके जा नहीं सकता। अभी वहां की गाय का pH, गोबर का pH 9 कैसे हो जाता है? अरे तुम जो खाओगे वही बाहर निकलेगा ना। तो ये क्या करते हैं, गाय को खिलाने के साथ में मीट खिलाते, सॉल्ट नमक डलाते। तो जितना ज्यादा नमक खाओगे, गाय खाएगी, धूप में रहती है, तो जितना नमक ज्यादा खाएगी उतना प्यास बढ़ जाती है, प्यास बढ़ तो पानी पिएगी, पानी पीती है तो दूध निकलेगा। समझ आए बात? अभी दूध निकलेगा मगर वेस्ट तो जाना है ना, तो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं तो जाना है। वो बाहर निकला हुआ है तो उसका पीएच है इतना डेंजरस। तो इनको तो दूध जैसे ही बंद करती है कट करके भेज दो ना। दिस इज द डिफरेंट, इसलिए हम कहते हैं गौ माता को करने के बाद में इसको अगर अच्छा ग्रीन ग्रास खिलाते हैं और उसकी पूजा अच्छा करते हैं, इससे भाव में बहुत चीजें रहती हैं। हम भोजन भी करते हैं, अगर सात्विक, वो तो अलग सब्जेक्ट है, मगर सात्विक भोजन करने से अपने हेल्थ तो अच्छी नहीं, अच्छी तो रहती है, मगर अपने विचार भी शुद्ध रहते हैं। ये वेस्टर्न सोसाइटी को नहीं समझेगा अभी तक। अपने पास में ये घरोधर है, इसको समझो। कई चीजें हम, वो जो भटके हुए हैं वो फिर से अपनी तरफ आना चाहते हैं। They don't know what is happening with them. There was 60% of the foreign population, if you understand it, is depressed. सबसे बड़ा ड्रग जो बेचा जाता है वो इलारी का जाता है, $6 billion वर्थ, सब डिप्रेशन के लिए। आपको आदमी दिखता है तो दिखेगा नहीं कि ये डिप्रेस्ड है ना। तो क्या ऐसी लाइफ चाहिए कि आपको? बहुत पैसे मगर डिप्रेस्ड है आप, सुबह शाम है। होगा शेखर जी कर रहा है, बहुत अच्छी काम हो रहा है। इट इज एन इनिशिएटिव है शुरू का। लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आर देयर, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द मॉडर्न पर से सोसाइटी। सवाल चालू ही रहेंगे। आई थिंक वील हैव टू टेक अ पॉज समवेयर। देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन। वो क्या है ना, सर के लिए तो बिकॉज ही इज कैलिफोर्निया क्लॉक टाइम, फॉर हिम द डे इज जस्ट बिगिनिंग। फॉर सम ऑफ अस इट मे नॉट बी दैट वे, बट there is a question that was coming online
that how important is it to plan ahead of time? 5 years, 10 years, what do you recommend and how important do you think it is? देखो, planning is always important. You cannot dissociate planning and execution. कई बार failure जो होते हैं जो without planning के लिए होते हैं. So it will depend upon the project and it is depend upon your dreams and what you want to achieve and what you do. But then don't expect that कि मैंने 3 साल से planning किया तो अभी हो जाना चाहिए. You know, there is always unexpected delays also. So you got to give enough time in between and not get totally disappointed or disused or, you know, continue pursue your dreams. कुछ दूसरा करना पड़े in between, so be it. ठीक है ना? Thank you. Yeah. So, how did you exactly keep up with technology? मतलब you said after 2000 आपने business started किया. So 2000 was the time when technology sector really boomed. So how were you able to keep up with the technologies in organization of your size? Research. There is no substitute for research. Continuation research में क्या होता है कि you had to learn patterns and things, various different things what is happening in the globe. You have to have market knowledge also, of course. And जैसे IT अभी यहाँ पे शुरू हो रहे हैं ना, we started IT in biotechnology in 90s, right? इंडिया में बनाएंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे अमेरिकन के लोगों के लिए और वो वहां बेचेंगे प्रॉफिट से. अभी आपने research and trends के बारे में बात की. So how does AI fit into the research specifically? Trends, AI, मतलब the AI that are coming up, what trends are identified, but how does research come into play in that? हमारी कंपनी में the one thing is we are very much connected to the market. और मार्केटिंग लोगों से जो फीडबैक आते हैं, we try to see that is discussed with the R&D people also, and there is a team, key people team, you know, and they are all responsible and working together. It is always a group which does the thing, you know. Research by research is because we are a commercial company and investors, they want to see the balance sheets, right? आप पैसे बनाएंगे तो ही वो पैसे डालेंगे. So it needs to be connected. But then there is short-term research, long-term, mid-term research, long-term research. सभी करना पड़ता है because some of the trends will develop later on. We'll take one last question. Somebody there has been waiting for quite some time. Yeah. आपने एक सक्सेस का बात करें. आजकल टाइम में हर एक सक्सेस हर एक में पैसे. बट आका लाइफ में हे आका फेल्युअर से कैसे आका लाइफ टीचिंग से रहेगा. That's a repeat question. I think we just talked about it, frankly. I'll give another chance. जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और अभी आजकल मार्केट में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बायो एंजाइम्स करके बनाना चाहती है. इट्स लाइक पेस ऑरेंज या फिर मल्टीपल. तो ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता? Good question. तो एंजाइम की बात कर रहे थे, यहाँ पे यही सब लोग बताते हैं कि क्लीन कर देते हैं, सारी चीजें क्लीन करता है सारी. नहीं, ये जो एंजाइम एरिया में बहुत रिलेटिवली न्यू फील्ड, इतना पुराना फील्ड होके भी रिलेटिव न्यू, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. और हमारे यहाँ पे जैसे वी आर इन अर्ली स्टेजेस इन इंडिया इटसेल्फ, तो यहाँ पे थुका थुकी लगती है ना बात. सॉरी टू से दैट. आई मीन लोग जो भी बेचता है बिकता है. और मार्केट इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट वन. मगर I can tell you one thing is for sure, if you can identify and make the proper enzyme products, they always works. Enzymes are very specific, and if you understand it, they are proteins, but all proteins are not enzymes. An enzyme structure, if it is properly you apply and do it, they will do the work with the pH, temperature, and concentration. This is one question I cannot refuse.
Please, sir. Shekhar, sir. एक 40 साल से इंडिया मोदी जी आने के बाद 10 साल आपका प्राउड मतलब आप फील आपका जो फीलिंग है वो चेंज हुआ है जैसे बाकी इंडियंस का भी वहाँ पे हुआ है वर्ल्ड वाइड आपने क्योंकि 50 साल निकाले अमेरिका में तो आप क्या चेंज देख रहे हो और साथ में दूसरा कि क्या अपील करोगे इंडिया को कि अभी कहीं अमेरिका कहीं जाने की जरूरत नहीं इंडिया में ही बेस्ट फ्यूचर वेरी गुड टू क्वेश्चंस एक की परमिशन लेके दो लेना, ये ऐसे थोड़ी ना मिनिस्टर रैंक पे बैठे हैं वो। दोनों क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस आई टेल यू दैट इंडियन कम्युनिटी जो हमारी है यूएस में दे आर मोर इंडियंस देन द इंडियंस हियर ओके हम लोग इतने त्योहार मंदिर सब कुछ जो करते हैं वो आप यहाँ पे नहीं देखेंगे यहाँ पे इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड वहाँ पे नहीं मिलती चीजें ना तो हम हमारी इस संस्कृति को पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं डोंट वरी अबाउट दिस नॉइज लेट इट रन मोदी जी 10 साल के पहले जब हमारे वहाँ पे थे यू नो दैट इंडियंस वर ट्रीटेड वेरी डिफरेंट इंडिया में चाइना में कोई फर्क नहीं था शेख बिकॉज 19-20 के बाद है यू नो अभी जिसे हम चाइना कहते हैं यू डोंट बिलीव इन द प्रोडक्ट काइंड ऑफ वैसे इंडिया का तो हमने जो चेंज किया था उस वक्त 92 में कि भाई हम इंडियन प्रोडक्ट नहीं बेचते थे इंडिया से प्रोडक्ट लाते थे और अमेरिकन ब्रांड बना के बेचते थे जैसे अमेरिकन करते हैं चाइना में आके या इंडिया में आके ब्रांड बनाते हैं ना नाइकी ब्रांड बन गया ना है कि नहीं आप पूछते हो नाइकी का शू कहाँ पे बना है अरे नहीं यार नाइकी का शू लेके आए हो 2,000-50,000 जो भी पैसे लगते हैं पता नहीं मेरे को कितने मिलते हैं सो द ब्रांड का पैसा देता हूँ बट इंडिया वाज लुक्ड वेरी डाउन मोदी जी ने सब बदल दिया इंडियंस आर सो प्राउड ऑफ मोदी जी एट दिस पॉइंट इन टाइम इन यूएस और सब जगह में दुनिया में सब जगह बता because he brought that pride. He brought that pride as a not only Indian but Hindus also. They कभी हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं करते हैं कुछ भी मगर it becomes like a enormous thing. Indian passport कोई पूछता नहीं था अरे डर जैसे यूज करते थे यार That was one of the big reasons I had to change my Indian passport to US passport. You cannot travel anywhere. हजारों वीसा लो सर बिजनेस के लिए कहीं भी ट्रैवल करना है इट वाज इम्पॉसिबल यूएस वीसा वाज एक्सेप्टेड एवरीवेयर नाउ दिस 92 जब से मोदी जी आए 14 से शेखर आई टेल यू दैट it's altogether different community now coming back because you see that he gives value to each and every life bringing back 50,000 people from Ukraine back to here students is a gigantic task. You cannot even imagine. 8 people on the are already on the death run, and bringing them from Kuwait, Qatar. Do you think this is simple and easy? अगर ये इंडिया 10 साल पहले होता तो कुछ नहीं होने वाला. I can guarantee you that. Okay. So what is happening? And मैं खुद जाके घूम के आया हूँ मैं. I was in the few months ago. I was on the border, सिक्किम वगैरह जाके आया. सिक्किम नहीं क्या कहते हैं अपना कश्मीर लद्दाख की बात है. क्या काम चल रहा है यहाँ पे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. You know, the work is day and night going around there. डेवलपमेंट में अयोध्या भी जाके आया हूँ. आपने भी कई पिक्चर देखे अयोध्या के क्या हो रहा है सर. आँख से देखोगे तो समझ में आता है. वहां पे लखनऊ के कुछ लोग आए हुए थे हमारे साथ में होटल में बैठे हुए थे बोले जा रहे थे लखनऊ. मैंने कहा अरे यार आप तो बहुत दूर से आ रहे हो 130 किलोमीटर है. बोले हम हरदम गोरखपुर जाते मगर अयोध्या कभी नहीं रुकते. मैं क्यों नहीं रुकते थे. बोले खराब क्यों था यहाँ पे कोई रुकने का चॉइस नहीं कोई नहीं रुकते. अभी सब लोग लाखों लोग वहां पे और इट्स सो सेफ एंड थिंकिंग इज सो गुड. देखो
नेशन इज ओनली एज गुड एज द पीपल। हमारी थिंकिंग अभी भी अगर सेल्फ इंटरेस्टेड रहेंगी तो इंडिया कभी नहीं बनेगा। अगर हम हमारी सोच अगर राष्ट्रीय बनेगी, नेशन के लिए बनेगी, तो इंडिया बनेगा। मोदी जी अकेले नहीं बदल सकते, हम लोगों को बदलना होगा। सो दैट इज वन पार्ट। सेकंड सवाल क्या था आपका? इंडिया में अच्छी फ्यूचर अभी इंडिया को बहुत साल है कैचअप करने के लिए। ओके, कई टेक्नोलॉजीज इन यूनिवर्सिटीज आर नॉट डेवलप्ड वेल यार। कोलैबोरेशन हो रहा है, वहाँ के यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ पे समझता है कि भाई मार्केट तो यहाँ है, पैसे यहीं से मिलेंगे। इट इज ऑल इकोनॉमिकली ड्रिवन, पैसे ड्रिवन सोसाइटी है, यू नो। सो इट इज इंडिया को भी बदलना होगा, हमारे लोगों को बदलना होगा, हार्ड वर्क समझना होगा। हम लोग तो अभी कई बार, नॉट एज अ कंप्लीट क्रिटिसिज्म, बट मैं देखता हूँ ना कि एक जॉब लेते हैं, 3 3 जगह काम करते हैं, कहते हैं कि पैसे उसको बना दिया, उल्लू बना दिया। दैट इज, ये जो ट्रेंड जो हमारा, जब तक कि हमारा चेंज नहीं होगा, it will take time, but I am sure it will change. आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग कि शेखर भाव ने इलेक्शन का ब्यूगल बजा दिया है। फिर अगले अगर 10 साल मिल जाते हैं मोदी जी के साथ में, तो मैं कहता हूँ कि you can see very different India. Hopefully, we'll be able to take any more questions separately offline. It's cut off time. Shekhar Bhau took extra time, so but very quickly to start to wrap up, sir. Thank you very much. Just to inform everybody that uh, Vasant sir has been a recipient of 2 lifetime achievement awards in the US. A round of applause for that. And the only reason I did not talk about them earlier was that only when you hear this life journey is when you appreciate why those lifetime awards have been given to somebody. Sir, it's been our privilege and our pleasure. And for me personally, I mean, the learning will never stop. Is something that I will definitely take back. A few things that I take back: you don't need to be rich or part of the rat race to be happy. I think you have to just find your own happiness. I am presuming that's what you told us. Uh, Respect what our forefathers have given to us. And I think the message for us, more importantly and more loud, was that how do you find a way to take that forward? इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, इसका प्रसार कैसे करें, अपनी जवाबदारी है. That's what I would kind of say. I hear that as I'm proud of what I am. I'm proud of who we are as a community, and that's the same message that you have given us, and that sort of emphasizes that further for me. Collaborations, connections, value of learning, that should never stop. I mean, I learned from my father where he keeps learning. He keeps learning. He keeps telling me even now, saying that मुझे computer सीखना है. And I think that's inspiring in a very different way, because that's about saying that, okay, I'm not scared. And you therefore talked about the aspect of fear and dealing with fear and failure. And I think I think if some of this, at least we all embody, I'm sure we can aspire to be a Vasantji Rathi ourselves. Thank you once again, sir. Thank you. I tell you one thing, I'm not at all extraordinary or ordinary. I'm very, very ordinary person. I'm not a smart person. I have a lot of smart people in my companies. Okay? They make me smart because they do the research and I just talk about it a lot of times. And that was the last point he talked about, where he said that be grateful to the people. Very highly intellectual people are among us, and I'm so proud of them. There are a lot of people, kids. That's why I like that initiative where, extraordinary kids were there. So many different nice initiatives you guys started here. And very nice to see that my old alma mater is doing so well with so many volunteers and everybody is doing so good. So thank you for giving me an opportunity to speak with you and meet with you and giving me a chance to talk to you. Thank you. I'm very grateful. Thank you. So as we draw to the close, हमारे अपने सुशीला आंटी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आज की आभार प्रस्तावना करें.
हाँ? जय श्री कृष्ण। और अर्थ रह गया मारवाड़ी में बोलता बोलता कड़े बदल दिया सगळं बदल क्या है, मारवाड़ी में बोलने लगते तो सब बोलते कि ते मराठवाड़ा का हो कि आटे बटे करो, चार बातें सुनने को मिलती है। जय श्री कृष्ण। एमईपीएम के कार्याध्यक्ष अतुल, मेरे सहयोगी अश्विन और अमोल, हमारे सभी जीसी मेंबर्स, और खास करके श्री नारायण जी भाई साहब जिन्होंने एमईपीएम और अमेरिका के बीच में राम सेतु का काम कर रहे हैं। आपके बदौलत वसंत जी भाई साहब हमसे जुड़े हैं, इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की पहचान, अच्छे व्यक्ति की अच्छाई उसके कार्य के जरिए सब तरफ फैलती है। वैसे ही आपके कार्य के बारे में हमने अभी आपका पूरा सफर के बारे में हमने सुना, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे एक मराठी में कहावत है कि वळणाचं पाणी वळणावरच जातं। आप इतने साल तक अमेरिका में रहे और अब जाके आप जिस एमईपीएम से जुड़ना चाह रहे हैं और यहाँ आए और आपने जो आज एमईपीएम लाहौटी हॉस्टल की यादें ताज़ा की और उसको आप भूले नहीं हैं, और अब अपना ऋण निर्देश समझो या जो भी समझो, अब वो पूरा करना चाहते हैं इस माध्यम से। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमें यहाँ पर ही रुकना नहीं है। सिर्फ हमें आपसे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, और आप, मुझे लगता है कि सिर्फ आप दोनों जुड़ के नहीं चलने वाला है, हम लोगों को और भी अमेरिका के ऐसे कई दान दावतों से जोड़ना है। जब वो जुड़ेंगे तो एमईपीएम का कार्य बहुत ऊंचाई तक जाएगा, ऐसे हमें लगता है। और वो आप कार्य कर रहे हैं, आपको इतना बड़ा अवार्ड भी मिला, तो हमारे लिए, वो माहेश्वरी लोगों के लिए, हमारे सब समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हम लोग ऐसे ही आपको अपने भविष्य के लिए भी शुभेच्छा देते हैं। इंटरनेशनल कनेक्ट कमेटी बालकृष्ण जी करवा के माध्यम से बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा काम कर रही है और इतने लोगों को जोड़ के रखा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो बहुत बड़ी बात है। स्कॉलरशिप कमेटी, सोलोमन कमेटी, आप सबका कार्य इतना अच्छा चल रहा है कि आपके बदौलत ही एमईपीएम इतना कुछ इस ऊंचाई तक पहुंच रहा है और इतना सब काम कर पा रहा है। आज काफ़ी बाकी कमेटी मेंबर्स तो आए हैं हमारे सभी, लेकिन और भी समाज के भी काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आप ऐसे ही, आप सब एमईपीएम के हो और ऐसे ही जुड़ते रहिए। एक बार एमईपीएम में जो आ जाता है, एमईपीएम के अपने हो जाता है, तो बस आप सबसे हमें यही उम्मीद है। और आपसे भी भविष्य में जब भी आप पुणे आओ, तो अपना जो मुझे लगता है कि कर्मभूमि बोलना चाहिए, जहाँ पढ़े हैं आप, तो उसको भी कभी भूलना नहीं है आपको। आपने आज यहाँ आए हैं और अपना इतना टाइट शेड्यूल रहता है अमेरिका वालों का, मुझे पता है, लेकिन आपने इतना समय हमें दिया और इतना अच्छा गाइडेंस सबको किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद तो हमारा अपना ही है, हमेशा के जैसा अच्छा ही अच्छी मुलाकात लेता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो थैंक यू तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे बोलूंगी मैंने। थैंक यू, शुभ रात्रि।